نگران سیٹ اپ کو بااختیار بنانے پر حکومت میں اختلاف، پیپلز پارٹی اور JUI نون لیگ سے ناراض۔ تاج حیدر نے کہا کہ اصلاحات کمیٹی کے ہر اجلاس میں شریک رہا، سیکشن 230 کے سب سیکشن 2A میں کوئی ترمیم پیش نہیں ہوئی۔ رضا ربانی نے کہا کہ پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے کہ نگران حکومت نے ان ترامیم سے فائدہ اٹھا کر 3 ماہ سے 3 سال تک مدت کرنی ہے تو ہمیں قبول نہیں۔ تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ پارلیمان کی اکثریت نے سمجھنا تو دور، قانون کو پڑھا تک نہیں، ہاں نہ ہو جاتی ہے اور قانون پاس ہو جاتا ہے۔ اگلے ماہ انٹرم گورنمنٹ مارز وجود میں آئے گی اور جتنا عرصہ جو آئینی ہے اس دوران ہماری اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ مجھے پوری امید وہ کرے گی۔ اس کے لیے ہم انیبلنگ لیجسلیشن بھی کر رہے ہیں۔ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم، اتحادیوں میں دراڑ، JUI پیپلز پارٹی ناراض، حکومت کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر بھی حکومتی ترمیم کے خلاف بول پڑے۔ کہا، میں اصلاحات کمیٹی کے ہر اجلاس میں شریک رہا، سیکشن 230 کے سب سیکشن 2A میں کوئی ترمیم پیش نہیں ہوئی۔ گزشتہ حکومت میں جو IMF نے ہمارے گلے میں ڈالا، اسے مزید سخت نہ کیا جائے۔ کوئی بھی ترمیم آئین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے اور ایک غلامی کا پٹا جو IMF کے ایگریمنٹ کے تحت ہم پہ ڈال دیا گیا ہے، پچھلی حکومت نے یہ ڈالا تھا، تو یہ اس کو مزید سخت نہ کیا جائے، اس غلامی کے پٹے کو مزید سخت نہ کیا جائے۔ سینیٹر علی ظفر نے بھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر حیرانگی کا اظہار کیا۔ بولے، پارلیمنٹ کی اکثریت نے سمجھنا تو دور، قانون کو پڑھا بھی نہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ سیکشن 2A میں ترمیم کی گئی ہے تو غصہ آیا۔ جو فیصلے اس کمیٹی میں ہوئے، امید ہے صرف وہی ترامیم یہاں پیش ہوں گی۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ آرٹیکل 2A جیسے سیکشنز امینڈ کیے گئے ہیں، جس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے، تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، غم بھی ہوا، تھوڑا سا غصہ بھی چڑھا کہ ہمیں کچھ جو ایک بار ڈسکس ہو کے فیصلے ہو گئے تو پھر یہ سرپٹیشسلی یہ نیچے سے کیسے یہ امینڈمنٹس آ گئیں۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر نگران حکومت نے ان ترامیم سے فائدہ اٹھا کر 3 ماہ سے 3 سال تک مدت کرنی ہے تو ہمیں قبول نہیں۔ اور اب نگران حکومت عالمی اداروں سے معاہدے کر سکے گی، معیشت کے لیے ضروری فیصلے کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ انتخابی اصلاحات بل کا مسودہ سامنے آ گیا ہے۔ پریزائڈنگ افسر رات 2 بجے تک رزلٹ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا۔ الیکشن ڈے سے 5 روز قبل پولنگ سٹیشن تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ امیدوار 60 روز میں قومی اسمبلی یا سینٹ کی نشست پر حلف اٹھائیں گے۔ ترمیمی بل کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ الیکشن ایکٹ 2023 بل کا مسودہ سامنے آ گیا۔ الیکشن ایکٹ میں شامل ترامیم کے مطابق پریزائڈنگ آفیسر نتیجہ فوری طور پر الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا۔ پریزائڈنگ آفیسر حتمی نتیجے کی تصویر بنا کر ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن کو بھیجے گا۔ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر اصل نتیجہ فزیکلی پہنچانے کا پابند ہوگا۔ مجوزہ ترامیم کے مطابق پریزائڈنگ آفیسر الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا۔ پریزائڈنگ آفیسر کو تاخیر کی صورت میں ٹھوس وجہ بتانی ہوگی، جبکہ الیکشن نتائج کے لیے اگلے دن صبح 10 بجے کی ڈیڈ لائن ہوگی۔ الیکشن کمیشن پولنگ سے 1 روز قبل شکایات نمٹانے کا پابند ہوگا۔ امیدوار 60 روز میں قومی اسمبلی یا سینٹ کی نشست پر حلف لے گا۔ اگر امیدوار حلف نہ لے تو اس کی سیٹ خالی تصور کی جائے گی۔ سینٹ اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر تعلیمی قابلیت کے علاوہ 20 سالہ تجربہ بھی درکار ہوگا۔ مسودے کے مطابق پولنگ ڈے سے 5 روز قبل پولنگ اسٹیشن تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ انتخابی اخراجات کے لیے امیدوار پہلے سے زیر استعمال بینک اکاؤنٹ استعمال کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن پولنگ عملے کی تفصیلات ویب سائٹس پر جاری کرے گا۔ پولنگ عملہ انتخابات کے دوران اپنی تحصیل میں ڈیوٹی نہیں دے گا۔ پولنگ اسٹیشن میں کیمروں کی تنصیب میں ووٹ کی رازداری یقینی بنائی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی مسترد یا واپس لینے پر امیدوار کو فیس واپس کی جائے گی۔ الیکشن ایکٹ کی مجوزہ ترامیم کے مطابق حتمی نتائج کے 3 روز کے اندر سیاسی جماعتیں
मखसूस नशिस्तों की हतमी तरजीही फहरिस्त फराहम करेंगी। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़ तक खर्च करने की हद होगी। सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। मुसवदे के मुताबिक गफलत पर प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का फैसला 15 के बजाय 7 रोज में किया जाएगा। पोलिंग अमले की हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवार 10 रोज के अंदर हल्के में पोलिंग अमले की तैनाती चैलेंज कर सकेगा। मुजवजा तरमीम के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर को मतहत हल्के की वोटर लिस्ट पोलिंग से 30 रोज कबल फराहम करने का पाबंद होगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने की सूरत में पार्टी को 2 लाख जुर्माना होगा। इलेक्शन एक्ट में मुजवजा तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत को माशी मुफाद और फैसलों का इख्तियार होगा और वो आलमी अदारों से मुआहदे कर सकेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ख्वाजा आसिफ और पीटीआई के सेनेटर्स आमने सामने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीटीआई की खातीन के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहा। एक शख्स अपने वर्कर्स को सामने लाकर खुद चूहों की तरह छुप रहा है। कहा कि जिस शख्स का दिफा खातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर पीटीआई की खातीन अरकान का एहतजाज। सेनेटर जरका तैमूर ने कहा कि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हमें जवाब देने पर मजबूर न किया जाए। अगर मेरे हाथ साफ हैं तो मैं जरूर किसी पे उंगली उठाऊं, अगर मेरे हाथ साफ नहीं है तो फिर मुझे उंगली उठाने का कोई हक नहीं। मैं इस बात का जरूर हामी हूं कि लेजिस्लेशन की एक सैंक्टिटी जो है जरूर होनी चाहिए। जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस है, उसको फॉलो होना चाहिए। लेकिन ये उंगली उठाने वाले जो हाथ हैं, या उस वक्त इनका जमीर किधर था, या उस वक्त इनको शर्म या ना आई जब उस शख्स ने और साथ ही डिसोल्यूशन भी असेंबली की, उसी सांस में डिसोल्यूशन भी असेंबली की जो बाद में रिवर्स हुई। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, विच हैज टू बी क्लीन। जितने यहाँ पे लोग हैं, खा वो किसी पार्टी से हो, सब हमारे लिए काबिल इज्जत है। सिर्फ हमारा किरदार, हमारा इखलाक हमें मुख्तलिफ करता है कि हम कौन हैं। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट। तो मकसद ये कि जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, 4 अपनी तरफ होती हैं। अगर हम अपने आप को काबिल इज्जत नहीं समझते तो हम किसी और की भी इज्जत इसीलिए नहीं करते। हमें अपने मुल्क में कोई बेहतर रिवायात शुरू करनी चाहिए। इन्होंने तो 10 दिन में चले जाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि रियासत बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी। मुल्क दिवालिया होता तो क़यामत तक माथे पर काला धब्बा, कब्र पर कतबा लग जाता। हमें IMF के साथ मुआहदा करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। पीटीआई ने सियासत चमकाने की खातिर रियासत कुर्बान कर दी। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा अवाम का कसूर नहीं है। गरीब एक वक्त का आटा खरीदने जाए तो पसीने छूट जाते हैं। IMF का जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने तोड़ा, दहशत गर्दी और सियासी अफरा तफरी, ये वो चैलेंजेस थे। मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर में इसका मैंने न कभी सामना किया, न कभी सोचा। पिछली हुकूमत इमरान नियाजी की, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और हमने तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुमा ने ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। यही वो फैसला था जिसकी खातिर फिर हम डट गए और हमने कहा कि रियासत को हमने बचाना है। खुदा ना खास्ता रियासत को नुकसान पहुंचा तो कहां की सियासत, कहां की वजारत और कहां की वजारत उज़्मा। बस इतना काफी है कि डिफॉल्ट क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके जमाने में डिफॉल्ट। तोशाखाना फौजदारी केस हतमी मरहले में दाखिल है। वकील ख्वाजा हारिस ने दोनों गवाहों पर जराह मुकम्मल कर ली। इस्लामाबाद की अदालत ने बयान कलमबंद करने के लिए चेयरमैन पीटीआई को कल तलब कर लिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली कल समाअत करेंगे।
तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की 3 अपीलों पर समाअत की। ख्वाजा हारिस ने तोशाखाना फौजदारी केस में सेशन कोर्ट के आर्डर से मुतल्लिक दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के आर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे बल्कि रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा की है। ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन के गवाह को शरीफ फैमिली के खिलाफ केस में गवाह वाजिद जिया करार दिया। तोशाखाना केस के एडिशनल सेशन जज की फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक दरख्वास्त पर ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि 2-3 रोज में सब क्लियर हो जाएगा। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर तीनों दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानब इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 342 के तहत कल चेयरमैन पीटीआई का बयान कलमबंद करेगी। आज समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस ने पहले गवाह वकास मलक पर जिरा करते हुए कहा कि गवाह ने बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन के सामने चेयरमैन पीटीआई ने खरीदार का नाम नहीं दिया, कभी इलेक्शन कमीशन की समाअतों में शामिल हुए नहीं और ऐसा बयान दे दिया। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने इतराज उठाते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस की जानब से गुमराह कुन सवाल किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने आज तक खरीदार का नाम इलेक्शन कमीशन को बताया ही नहीं। पानामा केस का जिक्र करते हुए ख्वाजा हारिस ने कहा कि पानामा केस के दौरान वाजिद जिया को मालूम नहीं होता था कि जवाब किस सफ़े पर है, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गवाह वकास मलक ने दस्तावेजात बनाई ही नहीं, कैसे जवाब दे सकता है। गवाह वकास मलक ने कहा कि टैक्स रिटर्न में तहरीफ की रकम को जाहिर किया गया, याद नहीं। मेरी शिकायत फार्म ही की हद तक है। इलेक्शन कमीशन के गवाह पर जिरा मुकम्मल हुई तो अदालत ने दूसरे गवाह डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन मुसद्दक अनवर को तलब कर लिया। अदालती इस्तफसार पर गवाह ने बताया कि मैंने बयान पढ़ लिया है। दोनों गवाहों पर जिरा मुकम्मल होने पर अदालत ने समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। साइफर की तहकीकात में पेशरफ्त हो गई है। चेयरमैन पीटीआई एफआई हेडक्वार्टर्स में आज पेश हुए। एफआई और हसास इदारे की 8 रुकनी टीम 2 घंटे तक उनसे पूछगछ कर ली गई। तहकीकाती टीम ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान के हवाले से भी सवालात किए। चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि साइफर के हवाले से कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों के मिनट्स मौजूद हैं। निगरान सेटअप कैसा होगा? निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान होगा या कोई ब्यूरोक्रेट? अरकान पार्लियामेंट इस बारे में क्या कहते हैं? इकरामुल्लाह जोया की रिपोर्ट में देखिए। मौजूदा असम्बली की तकमील में 17 रोज बाकी। निगरान वज़ीर आज़म कौन हो? जज, जर्नैल, टेक्नोक्रेट या सियासतदान? इस सवाल का जवाब जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। फैसला नहीं है, ये सवाल आप शहबाज शरीफ साहब से या राजा रियाज साहब से करें। आई थिंक सियासी होना बेहतर होगा क्योंकि उनको आवाम के दर्द का पता होगा, उन्हें पता होगा उन्होंने परफॉर्म करना है इन 3 महीनों में। जो क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन है एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम तो ये है कि वो न्यूट्रल हों, यानी कि वो किसी जमात के साथ उनकी कोई एफिलिएशन ना हो। इस हुकूमत से कोई तवक्कु नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। जब यहाँ पर चोर वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो जज और वो नहीं बन सकते हैं। डेफिनेटली निगरान वज़ीर आज़म किसी ऐसे शख्स को होना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा करे और जिसके ऊपर शफाफियत के ऊपर जो है जिनकी एश्योरेंस हो। ये सियासतदानों का काम है और सियासतदान ही होने चाहिए, ना जजेस होने चाहिए, ना जर्नैल होने चाहिए, ना कोई और होना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान ही होना चाहिए। जज, जर्नैल या टेक्नोक्रेट अवाम के मसाइल को समझ नहीं पाएंगे। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ इकरामुल्लाह जोया, GNN पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।